See, somebody has shared this thing. Must be trading on small lots, point zero to point zero two, whatever. Important is your consistency in profit. See, two trades, I think SL triggered, and rest all of a sudden my screen stopped sharing. Okay, so I hope this is visible, right? So see the beauty of this system. That's why I want to explain you for last 6 months. सभी लोगों के लिए देखिए दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और बाकी सब में उसको प्रॉफिट है चाहे छोटा होगा वट एवर इट इज बट ही इज इन प्रॉफिट राइट तो कंसिस्टेंसी है राइट सबका आ सकता है ये you all can do still better good you shared thank you and we are 106 people now in the room we can start with a trading training whatever कल हमने ये सीखा था एक्सक्लूसिवली हमने फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स we did this thing how we analyze the system before that see here higher time frame is curve analysis where you decide whether you want to be a buyer or seller अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन में है या अपर जोन में है देन यू वुड प्रिफर सेलिंग अगर प्राइस सेंटर में है देन यू हैव टू चेक ट्रेंड एंड लोअर टाइम फ्रेम में यू हैव टू बी अ लोअर एरिया एंड हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन यू बिकम अ बायर second point is check trend if needed like in a system if you are on higher side in supply zone see the pending orders will support your sell trade here institutional pending orders will support your sell trades so we don't think of much here and we try to become a seller here and I always suggest you all कि आप लोग confirmation trade लीजिए यानी जब प्राइस जोन से बाहर निकल रहा है तब तो इट विल बी एडेड कंफर्मेशन फॉर योर ट्रेड जब प्राइस यहाँ से निकल देखिए I already explained you can take three types of trades once when the price is going coming here touching your proximal line when the price is in the zone and third point is when the price is coming out so that we call it confirmation entry so I always suggest you all ki you should go for a confirmation entry in any case whether you are a seasoned trader चाहे आप पुराने हो चुके हैं चाहे आप नए हो कंफर्मेशन एंट्री में एक आपने अपने को एक थोड़ा सा पॉजिटिव एज ओवर एवरीथिंग रहता है कि मतलब प्राइस यहाँ से निकल रहा है आई डोंट से दैट प्राइस विल नॉट गो अप अगेन इट मे गो अप बट एक थोड़ा सा चांसेस रहता है कि इट विल नॉट गो अगेन कभी जा सकता है नॉट ऑलवेज सो कंफर्मेशन एंट्री है सेंटर में रहेगा प्राइस तो इफ यू आर if the trend is uptrend then you find out a demand zone in your lower time frame in the center area and then you become a buyer और अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है then you find out a supply zone and you become a seller and your lower time frame is for execution ट्रेड क्लियर हुआ यहाँ तक ये कल का मैंने एक 1 second screen is please 1 second oh I have not shared this now
इन आ गया ना विजिबल? यस। जो जो भी मैंने अभी बोला, व्हेन द स्क्रीन वाज नॉट विजिबल, तो सबको समझ में आया? वंस अगेन, it's a related curve analysis, wherein what you do is in your higher time frame you find out supply zone and demand zone. Then the distance which is in between these two proximal lines, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, right? So this is lower part, this is center part, and this is upper part. What we do is if the price is in higher time frame demand zone, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पर आपको मतलब एक, वैसे भी ये प्रॉपर डिमांड जोन ही है, और हाई टाइम फ्रेम होने की वजह से आपको इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बट स्टिल आई सजेस्ट कि यू शुड टेक अ कंफर्मेशन एंट्री, यानी कैसा होता है कि प्राइस अपने को 3 बार मिलता है यहाँ पर। Move the window away from the shared application. Close the problem. Yes. We're talking of this. What we do is we find out higher time frame demand zone and supply zone. सबको डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाना तो अब सब नए लोगों को भी आता है, आई बिलीव। ओके, अब हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये दोनों प्रॉक्सिमल लाइन, ये जो फर्स्ट पार्ट। तो जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन में है हमारा, और अगर हम हमारा प्राइस अगर ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन में है, तो इट्स गुड, इट वुड बी अ गुड डिसीजन टू बिकम अ बायर, क्योंकि यहाँ के जो इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे दैट विल सपोर्ट योर बाइंग ट्रेड। तो अगर आपका ये जोन बहुत बड़ा आता है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि में है तो यू टू फाइंड आउट वन लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन एंड यू कैन एग्जीक्यूट योर सेल ट्रेड ओवर देयर। एंड सेंटर में है प्राइस, तो आप ट्रेंड चेक कीजिए, अगर अप ट्रेंड है और आपको लोअर टाइम फ्रेम में आपके एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में अच्छा डिमांड जोन मिल रहा है तो आप बायर बनिए। अगर आपको आपका डाउन ट्रेंड है और प्राइस सेंटर में है एंड आपको अच्छा सप्लाई जोन मिल रहा है, तो यू बिकम अ सेलर। एंड इफ द ट्रेंड इज साइडवेज देन यू हैव टू वेट।
lower time frame is for execution. So everyone is good with this now. हमको फास्ट नहीं करना है रोहित जी. मुझे पता है फिबोनाची, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बोलना नहीं है उसको. आप लोग जो मैं करा रहा हूँ उससे ज्यादा आपको अगर चाहिए तो आप गूगल ज्ञान ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे लोगों को देखो, जिनको नहीं पता है, आई बिलीव 50% लोगों को फिबोनाची का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता होगा. क्या करना है, जो मैं सिखा रहा हूँ उस चीज से अगर आपका काम हो रहा है, ये ऐसे ही होता है ना. मतलब लोग मुझे बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं. अगर फिबोनाची आप ड्रॉ करेंगे, 3 पार्ट बनाएंगे, ओके, और मैं बोल रहा हूँ कि मैन्युअली मैं 3 पार्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है? जिंदगी में कौन सा आप 2 मिनट लेट करोड़पति बन जाओगे? करो ना, जो सिस्टम सिखा रहा हूँ वो करो ना. कोई तकलीफ है उसमें? मेरा क्लास है, मुझे सिखाने दीजिए. आपको सिखाना है, आप क्लास लीजिए. सिंपल है. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को रोहित जी के साथ जाना है तो जा सकते हैं. किसी को सीखना है फिबोनाची, बॉलिंजर और पता नहीं क्या क्या फलाना डिमका करना है तो करते रहो. मुझे पता है सब कुछ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टीच ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वो सब अपने सिस्टम में आता ही नहीं है. वो सब गूगल पे बहुत भरा पड़ा है, भर भर के. मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स पड़ा होगा गूगल पे. प्लीज लेट मी. देखिए क्या होता है, ये सब चीजों से मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. ट्रेडिंग एक चीज अलग है, ट्रेनिंग एक चीज अलग है. ट्रेडिंग में मैं अकेला अपना काम करता हूँ. ट्रेनिंग में मुझे 100, 200, 500 जितने लोग जुड़े रहते हैं सबको लेके चलना होता है. अब कोई एक ऐसा एकाधा कमेंट बीच में आ जाता है जहाँ मतलब अनएक्सपेक्टेडली, तो मतलब फिर दिमाग खराब हो जाता है फिर. लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं कुछ आ रहा है, अगर अपना सिस्टम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो हम नया कुछ ढूंढे. लेकिन ये फुल प्रूफ सिस्टम है सर. अगर गूगल ज्ञान में इतना पावर होता, ऑथेंटिसिटी होता, तो हमने बहुत कई बार डिस्कस डिस्कस किया है ये, कि अगर 95% लोग जो लूजर होते हैं वो पैसा बनाते ना. यूट्यूबर लोगों से ज्ञान ले लेते तो. और यूट्यूबर लोग बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, इसको पब्लिक मत करो. जो है अपने पास रहने दो ना अपने पास. ओके. तो हमने ये कर्व एनालिसिस किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया. अब वो मैं फिबोनाची से भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं. यहाँ इसमें और सॉफ्टवेयर में और भी टूल्स होंगे, बट आई वांट टू डू इट मैन्युअली. और ये मैं मैन्युअली सिखा रहा हूँ. महीने 2 महीने बाद आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको करने की. आप देखते ही बोल दोगे कि भाई प्राइस अपर लेवल में है, सेंटर में है या लोअर में है. लाइक, राइट, करेक्ट ओल्ड पीपल. वो ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. योर आईज आर ट्रेन टू सी दिस. हमको देखते ही पता चल जाता है. बहुत रेयर केस में ये होता है कि हमको नहीं पता चलता है देख के. तो जरूरत ही नहीं है उसको. 2 4 बार आप कर लोगे, 1 महीना भर कर लोगे, तो वो किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये तो मैं सिखाने के लिए इतना टाइम लगाता हूँ ताकि नए लोग जिनको नहीं पता एटलीस्ट उनको तो सिखा सकूं मैं. क्योंकि आई हैव टू डू माई ड्यूटी. राइट. तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिस पे हम काम करते हैं. ये आई डोंट कीप एनीथिंग इन माइंड. बस उस समय ही मुझे वो हिट हो जाता है वो दिमाग में. नहीं, किसी ने पूछा तो सर यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है ना. मुझे पता है क्या पढ़ाना है. 6 महीने से मैं आप लोगों की मतलब आप लोगों के सब
आप लोगों के साथ में हूँ, आस्था की टीम के साथ में, मुझे मतलब बिल्कुल अपना सिस्टम वैसे ही चलता है ना, जैसे अपन सीख रहे हैं। तो मुझे पता है क्या पढ़ाना है, कब कौन सा स्टेज आएगा, कब क्या पढ़ाना है, तो उसमें नया चीज क्यों मैं डालूं? ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया है कि हम उसको हाई टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई जोन फाइंड आउट करेंगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम चेक करेंगे प्राइस कहाँ है। जैसे अभी ये अपर एरिया में है, बट ऑलरेडी ठीक है, ये तो एक्चुअली दिस इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब प्राइस उसमें से ऊपर जाके वापस आ गया, दिस जोन इज इनवैलिड नाउ। ओके, बट फॉर एग्जांपल लाइक कल जब ये जोन बनाया होगा हमने, ये ड्रॉप बेस टॉप, उसके बाद प्राइस ये ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, राइट? तो ठीक है, तो हमको इस तरह से जोन्स बनाने हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और फिर बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेना है। अगर सेंटर में है तो आप हमेशा ट्रेंड चेक कर सकते हैं, आप, इट इज अप टू यू, बट आई डोंट डू दैट। आई गिव लीस्ट, मतलब दुनिया देती है, बहुत इंपॉर्टेंस देती है ट्रेंड को, आई डोंट गिव सो इम्पोर्टेंस टू ट्रेंड, क्योंकि वो बोलते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड बट टिल इट बेंड्स, मतलब जब वो बेंड हो गया, अब ये सपोज अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, आप बाइंग में हो, और ये बेंड हो गया, तो यहाँ से ये आपका पूरा कैपिटल भी खत्म कर देगा। तो ऐसा फ्रेंडशिप पे बिलीव करने का ही नहीं, समझ रहे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज जोन, दैट्स इट। आपका जोन सही रहेगा, आपका ट्रेड सही रहेगा। आई डोंट से दैट 100% ट्रेड विल बी करेक्ट। हो सकता है कोई 2-4 दिन आपके लगातार 5-10 स्टॉप लॉस फिगर हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिस्टम गलत है। 15 दिन आप 100% प्रॉफिट में भी चले जाते हैं। तो ऐसे डीमोटिवेट भी नहीं होने का, 2-4 दिन अगर स्टॉप लॉस फिगर हो गए, या स्टॉप लॉस फिगर हो गए, या कुछ हो गया, स्टॉप लॉस फिगर होना कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, तो आपका प्रोटेक्शन है ट्रेड के लिए। रूल बेस्ड ट्रेड ही करेंगे तो सही है ना। दिस कैन बी अ न्यू जोन देन, रैली बेस्ड एंड ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये आपका सप्लाई जोन था, ये अभी ये नया जोन बन गया इसके आगे। Well, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन इज विथ मी ऑन दिस? तो मैं आगे बढ़ूं फिर, और कुछ नया बताना है मुझे? दिस इज फॉर न्यू पीपल, और फिर आज हम 1-2 ट्रेड्स भी लेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी, नीड एनी? स्टॉप लॉस नहीं है सर, सौरभ जी, इट इज स्टॉप लॉस, STOP, स्टॉप लॉस। मतलब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सी, एवरीबडी, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज योर, at at this price, let's say this is 100 rupees, you have bought one share, 100. Okay, now you're expecting this to go at 120. This is your target for this 120. It is not necessary that always market you will be with the market. You may go wrong because आपके जैसे करोड़ों लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, इंडियन मार्केट की हम बात नहीं करते हैं, बट फॉरेक्स में तो पूरी दुनिया के लोग ट्रेड कर रहे हैं। So what you do is, and suddenly something happens in the market, some war opens, or some earthquake, or some tsunami, anything, whatever, or something like COVID or anything, something happens, and your price starts going against you. जब ये प्राइस लेट्स से कि 98 पर आया, तो यू विल थिंक कि चलो ठीक है, 2 रुपया माइनस हुआ है,
I'll wait for some time, it will come back at 100 rupees. अब 98 का ये चला गया 95 पे. अब आप थोड़ा सा एक्चुअली में थोड़ा सा टेंस हो गए, बट आप क्या सोचते हैं कि चलो अब 98 आ जाएगा तो आई एग्जिट माय पोजीशन. मार्केट इज स्टिल गोइंग अगेंस्ट यू. नाउ दिस इज 80. तो आप क्या सोचोगे? नाउ यू आर प्रेइंग टू गॉड, हे भगवान 95 ला दे, 98 ला दे, मैं खत्म कर दूंगा, मैं वापस शेयर मार्केट को देखूंगा ही नहीं. इस तरह की बातें, डीलिंग्स भगवान के साथ चलने लगती हैं. नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? टेल मी, कंफर्म कीजिए. मतलब भगवान के साथ डील कर रहे हैं, भगवान एक बार 95 आने दे, मेरा 5 रुपया नुकसान तो नुकसान सोचूंगा, भगवान तेरे को चढ़ा दिया और मैं बाहर हो जाऊंगा. होता है, राइट है ना? होता है ना? तो दैट इज अ जनरल टेंडेंसी, सबके साथ होता है. इसलिए तो ये सिस्टम है. अरे ये सभी के दिल की बात है, हर एक ट्रेडर का. ये कोई नया नहीं है. तो होने लगता है. अब ये चला गया 80. अब मुझे एक बात बताइए, ये 80 हो गया. जब आप 2 रुपए का लॉस नहीं ले पाए थे यहाँ 98 पे, 20 रुपए का लॉस आप कैसे कंफर्टेबली ले सकते हैं? फिर वो भगवान के साथ डीलिंग चालू होती है, और फिर अल्टीमेटली वो ऐसा हो जाता है कि वो मतलब 10-20 रुपया आ गया और आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो गया. ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, हजारों शेयर्स गिना सकता हूँ. सबसे बड़ा एग्जांपल है आरकॉम. मेरे दोस्त के एक क्लाइंट ने, इज अ बिग डॉक्टर इन मुंबई, बहुत बड़ा, किसी मेडिकल कॉलेज का डीन भी रह चुका है एंड ऑल, करोड़ों का शेयर खरीदा था. 1 लाख शेयर था उसके पास आरकॉम का. लगभग 550 पौने 600 रुपए का लिया होगा. आज आरकॉम का क्या वैल्यू है? 2 रुपया भी नहीं है. तो वो होता है ना, जब वो, और उसी की जगह अगर वो एक स्टॉप लॉस, एक सेल ऑर्डर लगा देता कि चलो ये 900 चल रहा है, 97 आ गया तो मेरा ऑर्डर खत्म, मैंने उसका पैसा भी बचता, 3 रुपया लॉस लॉस लेके वो निकल जाता. सो दैट इज स्टॉप लॉस. लोग लोग बोलते हैं कि हम स्टॉप लॉस हमारे दिमाग में है, लेकिन हम स्क्रीन पे, सिस्टम पे नहीं लगाते. दिमाग में रख के क्या फायदा है उसका? जिस तरह से हम बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर, जिस तरह से हम टारगेट लगाते हैं, तो उसके पहले आपका स्टॉप लॉस लगना चाहिए. लोगों ने देखा होगा, जब हम ट्रेड लगाते हैं तो मैं अपना ऑर्डर लगाता हूँ, उसके बाद पहले स्टॉप लॉस लगाता हूँ, उसके बाद हम टारगेट प्राइस लगाते हैं. ये लोगों ने देखा होगा, बिकॉज दैट इज द करेक्ट वे टू डू इट. हाँ, हुआ ही रहेगा. जब इतना बड़ा मूवमेंट होता है तो स्टॉप लॉस इज योर प्रोटेक्टिव थिंग. ऐसा मतलब 2-4 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आपको समझने का कि हाँ भैया बच गया मेरा पैसा. तो ये नहीं समझने का कि पैसा डूब गया, नुकसान हो गया. ये तो समझ में आया स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस समझ में आया सभी को, नए लोगों को? ओके. इट इज अ स्मॉल लॉस. if the position starts going against you, market starts going against you, then how you will protect your capital? वो ऑर्डर पहले ही लगा देने का कि इतना आ गया तो खत्म. दिन में 3 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, आप उस दिन कंप्यूटर से उठ जाओ, अपना लैपटॉप से छोड़ दो, घूमने चले जाओ, एक दिन पिक्चर देख के आओ, फैमिली के साथ टाइम पास करो, छोड़ दो, नेक्स्ट डे ट्राई करो. और अपने सिस्टम में ऐसा नहीं होगा कि रोज रोज स्टॉप लॉस ट्रिगर. आप अगर, और सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि अगर आपके 10 में से 5 स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए तो भी आप विन विन सिचुएशन में ही रहेंगे, कमा के निकलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ सेल ट्रेड लगाता हूँ और मेरा इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक. और मेरा
टारगेट प्राइस कितना होगा? फर्स्ट टारगेट विल बी nearest demand zone. Now you can see the difference. The stop loss is 189.531 से 189.800, मतलब 270 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। और आपका फर्स्ट टारगेट देखिए कितना है, सेकेंड टारगेट ये है। मतलब आपके 10 में से मैं बोलता हूँ 6 भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो भी आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। 4 ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। और ये हिस्ट्री नहीं, ये यहीं पर इसी क्लास में ही हमने 1:7, 1:8, 1:10 ट्रेड्स लिए। पुराने लोग कंफर्म कर सकते हैं इस चीज को। 1:4, 5 तो बड़ी कॉमन चीज है, वैसे ही मिल जाता है ट्रेड। इसी क्लास में हुआ है आप लोगों के पार्टिसिपेंट दोस्तों के साथ में। टीपी को किस प्रकार मैनेज करना चाहिए, मतलब यानी TP1, TP2 यू आर आस्किंग मी? I suggest you should take your stop loss and target on one higher time frame. जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे एक हायर टाइम फ्रेम पे। दिस डजंट मीन दैट अगर आप ऑलरेडी मतलब 4 आवर्स पे हैं तो आप डेली पे जाओ। 4 आवर्स इज ओके, सेम टाइम फ्रेम पे आप ले सकते हैं। 1 सेकेंड। दिस इज क्लियर अप टू नाउ? See, once you understand the concepts, once you understand the logic, once you understand the rules and all, trading is just like a cup of tea. बहुत इजी हो जाएगा ट्रेडिंग इसके बाद में, क्योंकि आपके इमोशन, आपका क्लास करके $100 से $500 तक आ गया। वेरी गुड मिस्टर काली। कितने टाइम में? कितने टाइम में? 2 मंथ्स, 3 मंथ्स? 2 मंथ, बहुत बढ़िया। गिव अ बिग क्लैप, बिग क्लैप। 5 times in 2 months, very good. And I believe this must be in 0.01 trade, 0.01 lot, right? मतलब अगर आप मतलब सोच रहे हैं कितना कमाया 0.01 पे $400, now you don't think in terms of dollars, think in terms of pips. 40,000 pips he has earned in 2 months. Really good. 100 का $1,200, बहुत बढ़िया। करते रहिए। सी, अल्टीमेटली आप लोगों को इंडिपेंडेंटली ही करना है, बस सीखना है और करते रहना है। इन 5 months, वेरी गुड। 11 कितना हो गया, मतलब 12 टाइम्स हो गया इन 5 मंथ। एवरी मंथ एवरेज करेंगे तो 2.4 टाइम्स इन्होंने, मतलब 240% प्रॉफिट निकाला एवरी मंथ में, राइट? तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। अभी मैंने आपको किसी का स्क्रीनशॉट दिखाया था जिसमें 10-12 ट्रेड से 2 स्टॉप लॉस हुए थे और बाकी के सब प्रॉफिट में थे। लॉस हो ही नहीं सकता, आपका कैपिटल वाइप आउट होगा ही नहीं कभी, आप चाहे 100 ट्रेड कर लो। इतने बड़े बेवकूफ नहीं है अपन की 100 के 100 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। 10 में से मैं बोलता हूँ चलो बाजार अपने को साथ नहीं दे रहा है, 10 में से 5 ट्रिगर हो गए स्टॉप लॉस, 5 में तो प्रॉफिट आएगा। और वो प्रॉफिट कैसा रहेगा? 1:5, 1:6, 1:4। आपके 2 ट्रेड में तो आपका लॉस कवर हो जाएगा स्टॉप लॉस वाला। समझ में आ रहा है? इसलिए लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, ट्रेडिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ट्रेड तो आप जब डालोगे ट्रेड तब आपका रिजल्ट आने वाला है, राइट? तो एवरीवन इज ओके विद दिस थ्योरी पार्ट?
We'll go for one trade now. चलो आज बताओ किस में ट्रेड लेना है आप लोगों को? क्लियर? नए लोग, न्यू पीपल। वैसे भी ये वीक में तो लॉटरी है, अभी थेरी चल रहा है और कल से वापस थेरी। चलिए गोल्ड गोल्ड गोल्ड। ओके, गोल्ड में ट्रेड लेते हैं। किसी भी करेंसी में लेंगे, किसी भी एसेट में लेंगे तो ये आपको पैसा देके ही जाने वाला है। नुकसान तो होगा नहीं। तो ये तो मतलब आप लोगों के सामने की ही बात है। 202 गोल्ड अगेन ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट। उस दिन हमने चेक किया था। हाउ विल डील विथ ऑल टाइम हाई? मैंने बताया भी था उस दिन, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो स्टॉक या करेंसी होता है तो उसको कैसे डील करते हैं। बिकॉज ऑल टाइम हाई है तो यहाँ पर आपको सप्लाई जोन नहीं है, राइट? हम ट्रेड लेते हैं। कौन सा था वो अपना जो अपन जो कर रहे थे, दैट वाज आई थिंक यूएस ऑयल, जिस पे अपन ने सब वो स्क्रिबलिंग किया हुआ है। यूएस। इस पे ही सब कर रखा था ना तो अपन ने सब लाइन वगैरह। तो यहाँ पर अपने को सप्लाई जोन मिल रहे हैं। सप्लाई जोन है। प्राइस ऊपर नीचे चलते रहता है, बट ऑल टाइम हाई हो जाता है तो उसको फिर यू हैव टू डील इट इन अ डिफरेंट वे। नहीं, व्हाट वाज दैट? यूएसडी जेपीवाई में कर रहे थे हम। 149 150। इंडियन। यस जी। हाँ, यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर नीचे मूव होते रहता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है। तो यू गेट जोन्स कि वहां पर इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो अपोजिट जोन भी मिलता है। अब जैसे यहाँ पर आपको सप्लाई जोन भी मिला, दिस कैन बी अनदर सप्लाई जोन। और पीछे और जाएंगे तो और सप्लाई जोन होगा। ये एक डिमांड जोन है, इसके नीचे यहाँ पर दूसरा डिमांड जोन है और जोन मिलेंगे। बट जब कोई भी करेंसी, ये प्राइस अब ये ऑल टाइम लो हो गया, समझो इसके नीचे ही चला गया या इसके ऊपर चला गया, तो वहां पर आपको अपोजिट जोन नहीं मिलता है। जैसे यहाँ अपर साइड में अपने को सप्लाई जोन मिल रहा है, लोअर साइड में अपने को डिमांड जोन मिल रहा है, वैसे नहीं मिलता है। तो अपने को उसको अलग तरीके से डील करना होता है। अभी हम गोल्ड को भी वैसे ही करेंगे। सर्च फॉर एक सही हो। गोल्ड में अपने को सप्लाई जोन नहीं है। आई थिंक लास्ट लेवल वॉज 214546 हाईएस्ट, जो हमने चेक किया था एक दो दिन पहले। यस, 2145 और समथिंग द हाईएस्ट लेवल। तो अभी यहाँ पर अपने को सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट अनदर डिमांड जोन। या नियरेस्ट डिमांड जोन क्या है? वी विल नॉट टेक दिस जोन बिकॉज एक दो तीन चार पाँच छः कितना है, सात कैंडल्स हो गया, विल नॉट गो फॉर दिस। विल नॉट गो फॉर दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड फॉर्मेशन। विल गो दिस टाइप ऑफ जोन। दिस विल हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन 4 आवर्स में। और इसमें आपको
कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड वगैरह कुछ देखिए मत। इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कीजिए, 15 मिनट्स इसके आसपास में कोई जोन आ रहा है, देन यू हैव टू इनिशिएट अ बाय ट्रेड फ्रॉम देयर, जिसको लोग मतलब अपना कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली वो अपना डिमांड एरिया का ही जोन रहेगा। इट विल बी अ बाय ट्रेड सॉर्ट ऑफ। अच्छा कोई डिमांड जोन देखिए और वहां पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू वेट फॉर हायर टाइम फ्रेम की प्राइस यहाँ आएगा, तो डेफिनेटली दिस विल गिव यू अ गुड ट्रेड, बट आई डोंट डील इन सच सिचुएशंस। बहुत दूसरा बहुत चीजें ट्रेड करने को, ये सब मगजमारी करता नहीं हूँ मैं। एंड आई सजेस्ट आप लोग भी, या तो स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हैं बहुत बढ़िया। साल पर लोगों के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें, इफ यू गो इन टिल स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल सकता है स्कैल्पर्स को इसमें, बट आई एम नॉट अ स्कैल्पर। दिस इज योर सप्लाई जोन ईयर, और डिमांड जोन ये तो नहीं हम लेंगे एनीवे। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं गोल्ड के लिए, लेट द प्राइस कम समवेयर इन, कहीं पर स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद में ही गोल्ड में ट्रेड लीजिए ना। सिंपली तो देखो, अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं 0.01 में भी ट्रेड ले रहे हो, $5 भी लॉस होता है तो यू आर लूजिंग 500 रुपीज। पोर्टफोलियो में भी डेंट आता है, मतलब $5 का सवाल नहीं है, 500 पिप्स का लॉस दिखने के लिए। जहाँ अपना रूल अप्लाई होगा वही करेंगे ना। हमको 2 और 2 5 करना ही नहीं है, हमको 2 और 2 4 ही करना है, राइट। तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये एक स्मॉलर जोन आपका आ रहा है 15 मिनट का, ये फ्रेश जोन हो सकता है। यू कैन टेक अ बाय ट्रेड हियर ऑल्सो। ये तो आपका जोन फ्रेश नहीं रहेगा, बिकॉज ये यहाँ पर इसको ये हो गया, टच हो गया। यू कैन वेट फॉर द प्राइस टू कम हियर 2155, देन यू कैन टेक अ कॉल, लाइक वेदर यू वांट टू बी अ बायर और यू वांट टू बी अ सेलर। सेलर तो आउट ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर आप बाय कर रहे हो, दिस इज 5 मिनट, तो यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस इन 15 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम का जो भी आएगा नियरेस्ट। थोड़ा सा बड़ा रह सकता है स्टॉप लॉस, बट इट विल बी अ शॉर्ट टाइम। यू कैन गो फॉर दिस स्टॉप लॉस, यू कैन गो फॉर दिस स्टॉप लॉस, जहां आपको कंफर्ट लगता है। 2153 अगर आपका स्टॉप लॉस है, और 2155 आपका ट्रेड है 56, तो जस्ट थ्री 3 पॉइंट्स का रिस्क है, एंड इसके सामने आपका टारगेट विल बी ऊपर। जहां तक जाए, आपको जहां इच्छा हो वहां पर ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। ये इस टाइप का ट्रेड रहेगा। समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर? गोल्ड नीचे उतरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, अपने को क्या पता। अपन तो बस मार्केट जहाँ चल रहा है वहीं चलने का अपने को, उसके साथ में। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने देने का, नीचे जा रहा है तो नीचे जाने देने का, उसमें क्या है। अपना काम क्या है? देखिए, वापस वही सेम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ महाभारत का। आप कृष्ण जी के साथ रहेंगे या नारायणी सेना लेंगे? किसके साथ जाएंगे? कम ऑन, रिप्लाई मी फास्ट। कितने लोगों को कृष्ण के साथ रहना और कितने लोगों को? यस, वी विल डू दैट। बस तो फिर ये अपना कृष्ण वाला एरिया है, इंस्टीट्यूशन। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस रिटेलर, करोड़ों रिटेलर, राइट। लेट द प्राइस कम हियर, देन विल डिसाइड, राइट। समझ में आया सभी को ये? मतलब हाउ यू हैव टू डील विथ ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो ट्रेड।
इसको भी आप ले सकते हैं ट्रेड, और रिस्क कितना है? $3, 3 पॉइंट। अगर आप वन स्टैंडर्ड भी लेते हैं तो ओनली 300। अगर यहाँ कंफर्मेशन एंट्री लीजिए, भाई जोन से आके निकलेगा, इफ इट गोज डाउन लेट इट गो, थैंक्स फॉर न्यू ट्रेड। रिटेल, मीडिया, इंस्टीट्यूशन ने तो बाइंग कर लिया होगा यहाँ पर। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के आपको लगता है इतना ऊपर बाय करेंगे? इंस्टीट्यूशंस का काम तो हो गया, अभी मीडिया का काम है प्राइस को ऊपर चढ़ाना। इंस्टीट्यूशंस तो सब बाय कर लिया उन्होंने यहाँ पर, ये जो लोएस्ट एरिया रहते हैं वही उनका बाइंग होता है। ये सब तो बस वो सेना लड़ते रहती है और कुछ नहीं है। तो जाने दीजिए ना, बाय पर जा रहा है तो जाने दीजिए। इसका मतलब क्या है मालूम है? इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर वीक हो रहा है। थैंक यू मिस्टर काली। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर वीक हो रहा है। अगर आप यूएसडी जेपीवाई लेंगे तो वो सेल में लीजिए। मतलब दिस इज नॉट रूल। थोड़ा सा कभी कभी अपन चीजें लेट कर सकते हैं, अल्टीमेटली अपना डिमांड एंड सप्लाई, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब चीजें आप चाहे जिससे कंफर्मेशन ले लो। यूएसडी कमजोर हो रहा है, राइट? अरे नहीं भाई, पवन जी, मैं भी साधारण इंसान हूँ आप लोगों जैसा। तो देखो, जो डिवाइन पावर है वो तो ऑलवेज रहना ही चाहिए दिमाग में। थैंक यू पवन जी। गोल्ड में हम, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं 2155, 2156, जहां भी आप बाय करना है कीजिए। स्टॉप लॉस 2153 लगा दो, और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने का इच्छा है तो नहीं, 2153 ठीक, 2153 ठीक है, 53 और ले सकते हैं ट्रेड। कंफर्मेशन ट्रेड लीजिए। आप पूछिए आशीष जी। माइक आपको बोलना है क्या? बोलना है तो हैंड रेस कीजिए, मैं आपको माइक देता हूँ। बोल, एक मिनट, बोलिए। जी सर नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मध्य नमस्कार। प्रदेश रीवा से हूँ। बोलिए। जी सर, जी सर, एक्चुअली अपने कुछ दोस्त लोग हैं जो नोएडा में बैठे हैं, हाँ जी। और वो भी ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। और मैं तो जैसे आप सिखाते हैं मैं उसी तरह करता हूँ, बिल्कुल रूल बेस। जोन बना तभी ट्रेड लेना, नहीं तो लेता ही नहीं हूँ। वेट भले करना पड़ता है, पर वो हम्म, लोग जैसे ट्रेड करते हैं कि हम्म, वो बता देते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया था मुझको 2-3 दिन पहले कि 8 तारीख क्या? तक जो गोल्ड है अप ही हाँ, रहेगा, और मतलब कि अप ट्रेंड ही चलेगा उसका, डाउन ट्रेंड चलेगा ही नहीं। सर ये चीजें कहाँ से कंफर्म होती हैं? ये मीडिया से। सर ये हम कहाँ से, मीडिया एक कैसे, मतलब मुझे फॉरेक्स मुझे ट्रेडिंग? मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता ये। मतलब मैंने जब से ये सिस्टम अपनाया है, मुझे और कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जी सर, मैं अगर भी भी ऐसे ही करता हूँ जैसे वो आपने बोल रहा है बताया। कि अगर 8 तारीख तक अप ट्रेंड है, जी, तो ठीक है ना, उसको पूछो कहाँ से पता चला ये। पूछता हूँ, कैसे बताता ही पता नहीं हूँ। चल, नहीं बताएंगे बताता ही ना, नहीं। क्योंकि आधे वो फ्लुक में रहते हैं। उनको देखिए, मतलब कैसा होता है, जैसे अभी ये चल रहा है ऊपर, ओके, हाँ, जी, ओके, ये आज का ये पोजीशन है समझो।
तो वो लोग 4 दिन के लिए भी बाय डिफॉल्ट ये समझ लेते हैं। उसको पूछो 8 तारीख के बाद क्या? 8 तारीख के बाद तो 2 दिन बंद रहेगा मार्केट, सैटरडे जी संडे आ जी गया। 11 जी तारीख जी को क्या रहेगा? अब उसका जवाब पूछिए उससे, और अगर वो जवाब देता है कि ऊपर जाएगा तो उससे पूछिए क्यों जाएगा, और नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा। और अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो समझो कि वो फ्लूक, मतलब जो बोलते हैं ना धुप्पल, वैसे ही, मतलब जी जी। लगा तो तीर नहीं तो तुक्का वाला हिसाब है। नहीं सर, वो बहुत लोगों का अकाउंट हैंडल करता है वो। अच्छी बात है। जी, तो उसने, मैंने हालांकि बात नहीं करता, मैसेज पे बता देता कई बार, पर मैं उससे पूछता हूँ कैसे, पर वो बताता ही नहीं कभी। नहीं बताएगा। जी। हो सकता है उसका कुछ सिस्टम हो, अपने से भी एडवांस हो, मुझे क्या पता। मैं देखिए, मैंने क्या कहा कि आई एम जी हैप्पी विथ माय सिस्टम, आई जी एम जी हैप्पी विथ माय वॉट एवर आई हैव लर्न, आई इम्प्लीमेंटेड दिस सक्सेसफुली, आई हैव जी टॉट मेनी पीपल। मतलब मैं आज तक कम से कम 10,000 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ क्लासेस जी जी। में, थ्रू ब्रोकर, थ्रू प्राइवेट कोचिंग में लगभग। हम भी सर आपसे ट्रेंड हुए हैं सर। नहीं नहीं, सुनिए, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग बीच में कुछ बोलते हैं, भाई अगर आपको ये ज्ञान नहीं चाहिए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, आप जो जो लोग सीख रहे हैं उनको सीखने दो, जिनको नहीं सीखना है वो अपनी इच्छा है, जुड़ना है जुड़े, जी। नहीं जुड़ना है नहीं जुड़े, सीधा हिसाब है। किसी का नुकसान हो रहा है क्या? मुझे एक बात बताइए, मैं वापस बार बार एक ही चीज पूछता हूँ। नहीं सर, पिछले मेरा तो 6 आज कोई महीने नुकसान में, नहीं हुआ सर। नहीं आज तक नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, भले आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, लेकिन जी जी ओवरऑल पोर्टफोलियो जहां से शुरुआत किया है, चाहे $100 हो, $1,000 हो, 10,000 हो, $1,00,000 हो, वहां से आपका प्रॉफिट हुआ है या मतलब वो उससे नीचे गया है क्या पोर्टफोलियो? ये मुझे पूछना है बस। नहीं एंड सर, मेरा पोर्टफोलियो उसके नीचे नहीं गया। आई एम श्योर 90% लोगों का पोर्टफोलियो ऊपर ही है, एंड काफी अच्छा, मंथली कम से कम 25-50% प्रॉफिट निकाल रहे हैं लोग ये सिस्टम से। यस सर, बिल्कुल, मतलब इतना चला हाँ, तो जाता है। फिर हमको क्यों? अरे बोलने दो ना आपके दोस्त को, क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैंने एक सिस्टम आप लोगों को जो सिखाया है, ये जो मैं जी सर। सिखा रहा हूँ, इसमें आपको हर चीज का रीजन मालूम है कि अगर आपका ट्रेड गलत हुआ तो क्यों हुआ, अगर आपका ट्रेड सही हुआ तो क्यों हुआ, दोनों चीज पता है आपको। यू आर नॉट जी सर। डिपेंडेंट ऑन लक, क्या कि किस्मत वाला हूं इसलिए मेरा ट्रेड सही चल गया, और बैड लक था इसलिए मेरा ट्रेड गलत हो गया। ये वाली बात हमने कहीं नहीं करी। मतलब पिछले 6 महीने में आप लोगों के साथ हूँ, पिछले 15 साल में मैंने अपने दिमाग में भी कभी नहीं सोची कि यार मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बैड लक था। ठीक है ना, मैं थोड़ी जी जी बाजार चला रहा हूँ, बाजार करोड़ों लोग चला रहे हैं, तो हो सकता है मैं गलत हो गया। ठीक है, तो आई डोंट काउंट दैट एज बैड लक। वो शुरू शुरू में होता था, आज से 15 साल पहले, जब मैं वो सिस्टम सीखने लगा था, वो शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, जहां से शुरुआत करी थी, ट्रेंड्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आता था। बट जब से 2010 से ये सिस्टम सीखा मैंने, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे पता है मेरा ट्रेड, अगर मार्केट, मैंने अपनी कोशिश करी मार्केट के साथ सही करने की, मेरा एनालिसिस ओके। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लगा देता हूँ और इसको अगर इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो नीचे चला जाएगा। मेरा लॉस कितना हुआ? मैक्सिमम $3 का, $30 का, $300 का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन, वो तो ऑर्डर्स तो मैं नहीं देख सकता, ऑर्डर्स तो नहीं दिखेंगे अपने को, कि हम चार्ट पे एक एरिया फाइंड आउट करते हैं, और एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि यहाँ से अगर प्राइस मूव हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ बाय किया है या सप्लाई एरिया में सेल किया है, तो वहां पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। नोबडी इज श्योर अबाउट इट, कितने ऑर्डर्स होंगे, कौन सी इंस्टीट्यूशन के हैं, वो किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कि उनके ये रेंज में, लेट्स से कि 100 लॉट के ऑर्डर थे गोल्ड के, और 100 के 100 एग्जीक्यूट हो गए या 90 एग्जीक्यूट हो गए। अब उसमें या तो 0 पेंडिंग ऑर्डर से या 10 पेंडिंग ऑर्डर से, तो वो प्राइस को नीचे पुश कर देगा ना, बिकॉज उसको पेंडिंग ऑर्डर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। पेंडिंग ऑर्डर्स अगर यहाँ बाइंग के लिए रहेंगे तो वापस प्राइस ऊपर हो जाएगा। समझ रहे, द रैशनल है बिहाइंड द ट्रेड, जो अपना सिस्टम है उसके पीछे क्या लॉजिक है।
ऐसा लॉजिक आप मुझे बताइए गूगल के कौन से, ये कैंडल के कौन से पैटर्न में आपको मिलेगा कि प्राइस क्यों नीचे जा रहा है और क्यों ऊपर जा रहा है? कौन से पैटर्न में मिलेगा? है कहीं पर उसका? जो भी जितने भी कैंडल पैटर्न्स है 200 300 500, किसी का एक्सप्लेनेशन है ऐसा कि भाई प्राइस ऊपर क्यों जाएगा या नीचे क्यों जाएगा? तो फिर जब एक सिस्टम अपने पास फुल प्रूफ सिस्टम है, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आपका जोन सही है, आपका ट्रेड सही रहेगा। और जो अगर वो बोल रहा है ठीक है ना, उसको अगर लोगों का फंड मैनेज कर रहा है तो करने दो, आप अपने तरीके से काम करो। अगर आप सीखने के बाद भी अगर आपको दूसरा कुछ ढूंढना पड़ता है, तो या तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा फिर, या तो अपने आप पे रखो, या अपने दोस्तों पे रखो, दूसरे लोगों पे रखो। ठीक, समझ में आया सभी को? ये सब मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर, कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब इट इज सिंपल लाइक ड्राइविंग। आपको अनम्यूट करूं? हैंड रेस कीजिए, नीलेश पटेल जी, हैंड रेस कीजिए। ऐसे देखिए, जितना हम बेसिक्स में पढ़ेंगे, आपका माइक ही नहीं दिख रहा है, आपका माइक कनेक्टेड ही नहीं है, पता नहीं क्यों, खाली आपका हैंड रेस ही दिख रहा है। Okay. बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जब अच्छा जोन बनता है तो जो लेग आउट्स होते हैं, जैसे अगर हमारा ड्रॉप बेस रैली हो या रैली बेस ड्रॉप हो, तो उसमें एक थोड़ा सा कंफर्मेशन ये चाहिए था कि जो जैसे जो ड्रॉप बेस रैली का अगर है, तो रैली की जो कैंडल होती है उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है हमेशा हमारे बेस से ऊपर होना चाहिए, करेक्ट? एक मिनट, ड्रॉप बेस रैली, वेट वेट वेट, ये रहा ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं जूम कर देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली, दिस इज अ ड्रॉप बेस रैली। हाँ बोलिए अब। सर जैसे इसमें हम किस जोन को बहुत अच्छा मानेंगे? जैसे ये जो हमारा ग्रीन है कैंडल, ये बड़ा तो रह ही रहे, लेकिन हाँ, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है हमारे बेस से ऊपर होना चाहिए। यस, बेस तक भी चलेगा, बट बेस से नीचे हो गया तो अपने काम का नहीं है, बिकॉज फिर वो अपना जो बेसिक रूल है कि कैंडल्स जी कट नहीं होने चाहिए, जी वही सर। वो यहीं पर वायलेट हो जाता है, क्योंकि आपका अच्छा, फर्स्ट कैंडल ही कट हो गया। ओके सर। और सर राइट। जैसे रेड कैंडल है, हाँ जो इसके पहले वाला रेड कैंडल है, इसका लोवेस्ट इसके ऊपर या नीचे किधर भी हो सकता है, चलता है, उसका कोई इशू नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये चलेगा। ये मतलब बेस से नीचे होगा तो भी चलेगा और ऊपर होगा तो भी यस चलेगा? यस, ये चलेगा आपको, बिकॉज जी जी। हमको क्या कंसिडर करना है, ये तो आई शो यू, मतलब अपने को इसके आगे का पार्ट कंसिडर करना है। ओके। बेस एंड रैली है तो इट्स अ पिक्चर ऑफ डिमांड, बेस एंड सप्लाई रहेगा तो इट्स अ पिक्चर ऑफ सप्लाई, बेस एंड ड्रॉप रहेगा तो, right? जी सर। तो ये कहीं से भी आया हो, प्राइस नीचे से आएगा रैली होके, या ऊपर से ड्रॉप होके आएगा, अपना वो ओके। कंसर्न नहीं है। व्हाट वी आर कंसर्न इज अबाउट अ जोन, जहां पर जोन हमारा करेक्ट कब बनेगा, जब उसमें कैंडल्स कट नहीं हो रहे। ओके सर। राइट। तो फर्स्ट कैंडल में ही अगर आपका इसका वीक इसके बाहर निकल गया, जोन के बाहर, तो आप वो अपना अपने लिए क्वालिफाइड नहीं है। काम ओके सर। चलाओ, आप ले लो, जो भी कर लो, बट इट इज नॉट अ गुड जोन। ओके। और इसमें ये सिस्टम में एक ही चीज है, पेशेंस इज द की। करेक्ट सर। लोग ने ना, कई लोगों ने एक वर्ड पर्टिकुलरली यूज कर रखा है, बगला बन के बैठे रहो। जी बगला सर। क्या करता है? मछली पकड़ने के लिए बैठा रहता है ना वहाँ, वेट। वेट एंड वॉच। यस, तो वही है। उसके अलावा अगर आप सोचें कि ये ऊपर जा रहा है, मैं प्राइस यहाँ बाय कर लूं, ये नीचे आने लग गया, मैं यहाँ सेल कर लूं, दैट इज नॉट आवर सिस्टम। हो सकता है लोग उसमें पैसा बनाते होंगे, बट जी सर। वी डोंट डू दैट, इट डजंट फिट इन आवर रूल।
बाकी करने को तो क्या है, दुनिया में रूल्स बनते भी हैं और तोड़ते भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जी सर। सर इसी इसी हाँ बोलिए। हाँ, इसी तरीके से एक बार रैली बेस रैली का या ड्रॉप बेस ड्रॉप का भी थोड़ा सा कैंडल फॉर्मेशन में उसका वीक कहाँ होना चाहिए वो थोड़ा सा बता दीजिए। सेम 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 सेम। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर वी हैव अ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है छोटा। जी ओके, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, जी सर। ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, एवरीवन सी दिस। ये अपना, लेट्स से कि ये लोएस्ट पॉइंट है यस सर। फॉर्मेशन, हाँ सॉरी, सप्लाई जोन है। जी सर। फॉर्मेशन का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट बॉडी, ये अपना जोन बनेगा, सप्लाई बराबर। जोन, राइट। तो यही है, मतलब अगर आपका ये जो लेग आउट का कैंडल है, ये इसका अगर पॉइंट इसके बाहर निकल गया तो जी वी सर। विल नॉट कंसिडर दिस। आपने ओके। देखा होगा बहुत जगह अपन जोन नहीं लेते हैं, क्योंकि जी वो सर। लेग आउट का उसका वीक उसके बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स वो उसने उसका जो इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स उसने कंज्यूम करना चालू कर दिया ना, खत्म कर दिया वो। जी सर। ये बहुत बारीकी वाली चीज है, करेक्ट सर। राइट। ओके, राइट सर। ठीक है, या थैंक ठीक सर, थैंक यू यू, सर। आप म्यूट कर लीजिए। जी सर। 740, ठीक है। गोल्ड का ट्रेड हम नहीं ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ, किसी को लेना है तो ले सकते हैं। ट्रेड का मैंने ये बता दिया, 2155 पे बाय कीजिए, 56 पे, और 2153 का आप एसएल लगा दीजिए। 53 से 5-10 पॉइंट नीचे, 52.85, 52.90 वगैरह ऐसे कर लीजिए और देख लीजिए। हाँ पूछिए, जब तक सही नहीं होता। आपको बोलना है मिस्टर काली? हाँ, हेज ट्रेड, हेज क्या होता है बेसिकली? हेज मतलब आप अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सपोज आपने बाय ट्रेड ले लिया, जैसे कि यहाँ पर आपने बाय ट्रेड ले लिया, ओके। अब आपको लग रहा है कि प्राइस आपके अगेंस्ट जाने वाला है या न्यूज कोई आ रही है, तो आपने वही लेवल पे या उस स्टॉप लॉस लेवल के नीचे आपने एक सेल ट्रेड लगा दिया। तो इसमें क्या होगा, आपका बाय ट्रेड प्रोटेक्टेड हो गया। आपका अगर समझो प्रॉफिट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आपने यहाँ से बाय किया और यहाँ से बाय किया और आपका प्राइस यहाँ तक आ गया, ओके। यू डोंट वांट टू एग्जिट द पोजीशन, बट सामने समझो अगले कुछ टाइम में न्यूज वगैरह आने वाली है कि आपको ओवरनाइट कैरी करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक सामने वही करेंसी का उसी जगह पे एक सेल ट्रेड लगा दिया, तो दैट बिकम्स योर हेज पोजीशन। मतलब ये अगर यहाँ पर प्राइस नीचे आने लग गया, यहाँ आपका यहाँ तक आ गया, नीचे आ गया, तो ये भी नीचे जाएगा, तो दिस विल प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। दैट इज योर हेजिंग। एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, कि बाय ट्रेड लिया है, उसको बचाने के लिए सेल ट्रेड भी ले लिया, दैट इज हेजिंग। बट हेज जितना लगाना इजी है, उससे बहुत डिफिकल्ट है निकालना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है मैं ये ट्रेड एग्जिट एग्जिट करूं या ये ट्रेड एग्जिट करूं। अगर आपने बाय ट्रेड बचाने के लिए ये ट्रेड लगाया, आपकी जगह मैं होऊंगा, मैं देखूंगा कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, प्राइस यहाँ तक आ गया, मैं ट्रेड खत्म कर दूंगा। आई विल नॉट गो फॉर हेजिंग, मैं नया ट्रेड यहाँ लगाऊंगा अपना एनालिसिस करके। हेजिंग इज हेज एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। नॉर्मल फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको अलाउड नहीं रहता है हेज करना।
हेज फंड्स अलग होते हैं। समझ में आया? हेज ये बहुत ही बेसिक वन लाइन डेफिनेशन दिया हुआ है मैंने। और किसी को कोई डाउट भी है? 2-3 मिनट्स। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगेन द सेम थिंग जो जिससे शुरुआत करी थी मैंने, फिबोनाची से। संजीव कुमार जी, आप भी वही चीज कर रहे हो। वॉल्यूम दिखाने की अगर जरूरत होती तो मैं आपको वॉल्यूम दिखाता कि नहीं दिखा? बताइए, इतना विश्वास है कि नहीं? अगर जरूरत होती तो मुझे वॉल्यूम पैनल ऑन करने में क्या लगेगा? बस यहाँ से क्लिक ही तो करना है। बट मैं नहीं दिखाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, लेट्स से कि यहाँ पर इतना वॉल्यूम है। लेट्स से कि ये आपका वॉल्यूम है 1000 लॉट्स वॉल्यूम है, 500 लॉट्स। ओके, बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ। अब यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है तो इसका क्या यूज है? बताइए वॉल्यूम का। क्या आप क्या समझते हैं वॉल्यूम से? इसको क्या यूज होगा ये? मुझे तो नहीं लगता कोई यूज होगा इसका। हाँ, यहाँ पर ये हो गया, 1000 लॉट एग्जीक्यूट हो गए। जिसने खरीदने थे खरीद लिए, प्रॉफिट बना लिया, या जिसने बेचने थे बेच दिए। अब मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है तो मुझे उससे उससे क्या करना है? आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, दैट्स इट। अगेन जी, चलिए आप लोग है ना, गूगल से बहुत कुछ सीख के आए हैं। ये अलग अलग एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, ये अलग अलग ब्रोकर्स से, अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर से प्राइस आता है। अपने इंडिया में एक, जैसे एनएससी बीएससी, आप देखेंगे एनएससी बीएससी में भी प्राइस डिफरेंस रहता है। एक अगर रिलायंस का शेयर लेंगे तो कुछ पैसे का डिफरेंस हो जाता है, नोटिस किया है लोगों ने? और उसी के ऊपर आर्बिट्रेज होता है। तो यहाँ तो ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। सैकड़ों एलपीज है, सैकड़ों लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, जो जैसे सपोज आस्था एफएक्स का कहीं से डेटा आ रहा है, उनका उनके डेटा में कुछ और रहेगा प्राइस, कहीं दूसरे हो सकता है यूनिग्लोब में कुछ और रहेगा। तो दैट्स व्हाई द डिफरेंस इज देयर, और कुछ नहीं है। आप एक ही जगह काम कीजिए, 10 जगह आप दिमाग मत लगाइए, तो काम चलते रहेगा। एंड दीज आर माइनर थिंग्स। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे उसको बेस कैंडल? बिल्कुल छोटी है तो मानेंगे ना, ये इसको मानेंगे हम बेस कैंडल अगर उसका प्रॉपर लेग आउट है, फ्रेश है। उल्टा ये तो बहुत अच्छा है मेरे को, मतलब अगर हाई टाइम फ्रेम में ये मिल रहा है छोटा सा कैंडल, दैट मीन्स मुझे इतनी जगह में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स मिलेंगे। एंड दिस इज मेरा कितना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, आप सोचो ना। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, हार्डली एनी रिस्क, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, नॉट इवन दैट मच। और सामने प्रॉफिट भर भर के, राइट? तो एवरीथिंग मैटर्स। ओके, एक्सेप्ट दिस। देखिए, अगर वॉल्यूम दिखाने की जरूरत होती तो मैं दिखाता ही ना आप लोगों को। जब नहीं दिखा रहा हूँ तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं, मुझे तो नहीं लगती है जरूरत। जिसको किसी को जरूरत है, आप लोग अपना वॉल्यूम टैब ऑन करके देख लीजिएगा, समझ में आता है कुछ तो ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑन करना, फिर बाद में धीरे धीरे आरएसआई ऑन करना, फिर एमएससीडी करना, फिर बॉलिंजर बैंड करना, फिर ये क्लास से एग्जिट हो जाना, फिर नया अपना सिस्टम चालू करना। हम तो यही चलाएंगे, हमको तो वॉल्यूम देखना ही नहीं है, राइट? चलिए, होप एवरीबडी एंजॉयड द क्लास एंड कुछ सीखा होगा। हाँ, कहाँ मुझे बोलेंगे तो मैं आऊंगा ना, नहीं तो मेरा तो ऑनलाइन चल ही रहा है। आई एम हैप्पी।
मार्केट में इतना सारा सिस्टम होता है, वो सब मतलब रिटेलर्स को फंसाने के लिए रहता है, या रिटेलर्स फंस जाता है। हाँ पूछिए पवन जी, 1 मिनट में पूछ लीजिए, क्लोज करना है मुझे। कहाँ होली पर? मतलब मैंने मेरा गांव का नाम फेमस कर दिया। मैं कुलदीप जी को बोल दिया। एक मिनट मुझे हिंदी। यस जी, डीपली ट्रेनिंग। अरे सर, बस सीख ही रहे हो ना आप लोग। चलिए, I'll close the session. Thank you very much. God bless you all. Thank you. Fund managers, yes. Good night.